हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2022 एडिशन, चैप्टर 6 रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। So we will see question number 17 regarding this. Aman, Bimal and Deepak are partners sharing profits in the ratio of 2:3:5. The goodwill of the firm has been valued rupees 37,500. Aman retired. Bimal and Deepak decided to share profits equally in future. Now, who has retired? Aman. First partner has retired. Fine. And continuing partners का ratio अब change होकर के 1:1 हो गया है. Calculate gain or sacrifice of Bimal and Deepak on Aman's retirement and also pass necessary journal entries for the treatment of goodwill. So let us do that. So solution 17 we will see Aman, Bimal and Deepak. And Deepak ये तीनों पार्टनर हैं और इनका रेशियो था 2:3:5. Now who retires? Aman retires. Okay. So continuing partners are Bimal and Deepak. And their new profit sharing ratio as suggested in the question is 1:1. So for treatment of goodwill हमें sacrifice या gain निकालना पड़ेगा कि पार्टनर अमन के जाने से उसका हिस्से को, मतलब उसके पोर्शन ऑफ प्रॉफिट को बीमल और दीपक को बराबर मिल गया है। अब फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है, तो कितना बीमल को मिला और कितना दीपक को मिला। सो गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। गेनिंग रेशियो इज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो फॉर बीमल। न्यू रेशियो इज 1/2 माइनस ओल्ड रेशियो इज 3/10। उसी तरीके से दीपक 1/2 माइनस 5/10. So when we calculate LCM here it is 10. So 5 minus 3 and here it is 10. Again 5 minus 5. So it is how much? 2/10 और यहाँ 0. फाइन. मतलब अमन का जो पोर्शन है वो पूरा का पूरा बीमल को मिल रहा है। देखो बीमल कितना गेन कर रहा है, 2/10 गेन कर रहा है और उसका टोटल प्रॉफिट में हिस्सा भी 2/10 है। फाइन. सो एंटायर पोर्शन ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इज गेन्ड बाय बीमल. सो द बर्डन ऑफ पेइंग गुडविल टू द रिटायरिंग पार्टनर विल बी ऑन बीमल अलोन. फाइन. दीपक को गुडविल का पैसा कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि उसको कुछ भी गेन नहीं हुआ है अमन के जाने से. Fine. So let us see the treatment of goodwill. So we will see the journal entry now. For this, gaining partners capital account debit. So कौन गेन कर रहा है? बीमल. बीमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड. और कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? रिटायरिंग पार्टनर अमन. So to Aman's capital account. So what will be the amount of goodwill to be given is total goodwill of the firm is 37,500. 37,500 multiplied by 2/10. Rupees 7,500. Being goodwill paid to Aman. Retiring partner Aman by gaining partner Bimal. Now let us see question number 18. Hanni, Pammi and Sunny are partners sharing profits in the ratio of 3:2:1. Goodwill is appearing in the books at a value of rupees 60,000. मतलब किसी भी पार्टनर के रिटायर होने से पहले फर्म के बैलेंस शीट में गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है एसेट साइड में 60,000 रुपीज़ का. एंड पम्मी रिटायर्स एंड एट द टाइम ऑफ पम्मीज रिटायरमेंट goodwill is valued at rupees 84,000.
सो नया गुडविल कैलकुलेट हुआ है 84,000. हनी एंड सन्नी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1. Fine. Record the necessary journal entries for treatment of goodwill. So let us calculate sacrificing or gaining ratio first and then treatment of goodwill. So solution 18. We have got 3 partners, Hanni, Pammi and Sunny. और उसमें से पम्मी रिटायर हो गया. And new ratio of continuing partner Hanni and Sunny is 2:1. अब हम सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे. गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे. गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. सो कौन गेन कर सकता है? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स ही गेन करेंगे. हन्नी का बनाएंगे. न्यू रेशियो इज 2/3 माइनस ओल्ड रेशियो ऑफ हन्नी इज 3/6. उसी तरीके से सन्नी का new ratio is 1/3 and old ratio is 1/6. So LCM is 6 here. 4 minus 3 that is equal to 1/6. Here also LCM is 6 and 2 minus 1 that is equal to 1/6. So gaining ratio is how much? 1:1. So in journal entries, first we will write off the existing goodwill in the books. सो बुक्स में पम्मी के रिटायरमेंट के समय 60,000 रुपीज़ का एसेट गुडविल है और इस गुडविल को हम राइट ऑफ करेंगे. ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करेंगे. सो सारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर. टू गुडविल. गुडविल डेबिट बैलेंस होता है, एसेट है तो उसे राइट ऑफ करने के लिए हमें क्रेडिट करना होगा और डेबिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. 60,000 रुपीज़ का था, उसे हमने राइट ऑफ कर दिया ओल्ड रेशियो में, दैट इज 3:2:1 में. सो 30,000, 20,000 एंड 10,000 विल गो रेस्पेक्टिवली टू द पार्टनर्स. बीइंग ओल्ड गुडविल या एग्जिस्टिंग गुडविल written off in old ratio. Now we will see the treatment of goodwill on retirement of Pammi. Okay, so gaining partners capital account will be debited. कौन गेन कर रहा है? दोनों गेन कर रहे हैं, दोनों कंटिन्यूइंग पार्टनर्स गेन कर रहे हैं, इसलिए उनके कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे. Hanni's capital account debited and Sunny's capital account debited. टू द सैक्रिफाइजर. कौन है सैक्रिफाइजर? आउटगोइंग पार्टनर या रिटायरिंग पार्टनर ही सैक्रिफाइस कर रहा अपने हिस्से को. सो पम्मी. अब अमाउंट ऑफ गुडविल क्या रहेगा? क्योंकि पम्मी रिटायर हो रहा है इसलिए गुडविल का कैलकुलेशन हुआ है, वो है 84,000. ये फर्म का गुडविल है और हमें पम्मी के गुडविल को पम्मी का गुडविल ही देना है. सो 2/6 है इसका हिस्सा. सो इट इज़ 28,000 रुपीज़ और ये इनका गेनिंग रेशियो है 1:1. सो 14,000 दोनों पार्टनर 14,000 कंट्रीब्यूट करेंगे तो आउटगोइंग पार्टनर को 28,000 रुपीज़ का गुडविल मिल जाएगा. बीइंग गुडविल पेड टू पम्मी इन गेनिंग रेशियो, that is 1:1. So this is the solution for treatment of goodwill. मुझे उम्मीद है कि आपको आज का क्लास भी अच्छे से समझ में आया होगा. इन केस आपको कुछ डाउट है then please put it in the comment section. Thank you so much for liking, subscribing and sharing the channel. And if you have not, then please do like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.